Ignited Minds Tutorials has recently released an educational video series focusing on the concept of powers and exponents for Class 8 CBSE Mathematics. These videos are designed to provide a comprehensive understanding of this important topic. The concept of powers and exponents plays a crucial role in mathematics and is utilized in various real-life scenarios. Through this series, students will learn how to simplify expressions involving powers, as well as the rules and properties associated with exponents. The videos begin by introducing the basic concept of powers, explaining how they represent repeated multiplication. Students will then learn about the base and exponent of a power, and how to evaluate and compare different powers. The series also covers the laws of exponents, including the product law, quotient law, and power law. These laws allow students to simplify and solve complex expressions involving exponents. Moreover, students will explore the concept of negative exponents and understand their significance in mathematics. The videos provide examples that illustrate how negative exponents are related to reciprocals and can be used to simplify expressions. By watching these videos, students can strengthen their understanding of powers and exponents, which will serve as a solid foundation for future mathematical concepts. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational resources to help Class 8 students excel in their mathematics studies. Okay, so Bacha Party will start with exponents and powers today. क्या आइडिया है आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में? ओके, सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बच्चा पार्टी होता क्या है देख लो. लेट्स से आपका a रेज टू m, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज बेस, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पावर. ठीक है, क्या हो गया? पावर. तो जैसे आपका 2 क्यूब है, so it means what? 2 into 2 into 2. ठीक है, क्लियर है? So this is basically known as base and this is known as its power. So we will see some properties which are pertaining to this chapter. और हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन में रूल्स को अप्लाई करते हैं, डिवीजन में रूल्स को अप्लाई करते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर थिंग्स दैट वी विल सी. ओके, इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं हम? 1 सेकेंड बच्चा पार्टी, ये क्या हो रही है? ठीक है, इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स. ठीक है, so what is an exponent? What is an exponent? So let's look at it. If m is a positive integer, then a by m is equal to a up to m terms. ठीक है, अगर m आपका पॉजिटिव इंटीजर, so let's say a by m, so that will be how much? a into a, that is m times. समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं लिखूं भाई 2 raised to 3, so it will mean 2 into 2 into 2 3 times. अगर मैं लिखूं 4 raised to 4, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 4 into 4 into 4 into 4. So what you are doing is you are multiplying 4 times. Here what is it that you are doing? You are multiplying 2 3 times. So whatever is your exponent, ठीक है, if m is a positive integer, then a raised to m up to m terms means this. Clear? Okay. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m terms. Here a is called the base. So what is this known as? This is known as base. दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट और पावर. ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको और पावर भी बोल सकते हैं. ओके, सो एम इज कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स. सो दीज आर द नेम्स बाय विच इट इज नोन. ठीक है, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स. ठीक है, सो ए इज नोन एज द बेस एंड एम इज नोन एज द पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स. क्लियर बच्चे पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए. सो m is basically known as the power. So plural of index is called indices. Plural मतलब index हो गया, तो इसका जो plural word है वो indices बोलेंगे हम इसको. a raised to 10 मतलब क्या हो जाएगा बोलो? a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टाइम्स. ठीक है, सो a into a 10 टाइम्स. 5 raised to 3 मतलब 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स. सिंपल. ओके, up to 3 टाइम्स. ओके, m raised to 4 means you are going to multiply m how many times? 4 times. सिंपल, फेयर एनफ. ओके 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 ओके, चलिए. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अभी यहां पे देखो, इसको ध्यान से समझना. ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स मींस व्हाट? तो लेट्स से ये 16 है, 16 के स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं. एक्चुअली इट मींस व्हाट? इट मींस 16 रेज टू 1/2.
ठीक है, क्लियर है। अगर समझ लो आपका क्यूब है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, दिस विल बी 16 रेज टू 1/3। अगर आपका फोर्थ रूट ऑफ 16 है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 16 रेज टू 1/4। आप बोलेंगे आपने यहाँ पे 2 क्यों नहीं डाला, तो 2 हम नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 मतलब 1/2, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 ही होगा, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलेंगे। यहाँ पे 3 है मतलब क्यूब रूट, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16। सो दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट ऑफ 16, दिस इज नोन एज cube root of 16, cube root of 16, this is known as fourth root of 16, fourth root of 16, fourth root of 16, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो लेट्स से आपका देखो, अभी देखो 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर रूट मतलब 16 रेज टू हाफ, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, इस 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू हाफ, 4 रेज टू 2 लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, और बाहर क्या है बच्चा बाड़ी, हाफ, सो दिस विल बी 4 रेज टू 2 इंटू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 4, तो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4, दैट्स हाउ वी राइट इट। अंडर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज हाउ मच, 4। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन, ओके 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 ओके। 16 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो 16 को अपन 4 इज स्क्वायर और 16 is the square of 4, so 4 is the square root of 16, ठीक है। तो 16 को अपन लिख सकते हैं 4, which can also be written as 16 raised to half is equal to 4, 16 raised to half is equal to under root 16, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 is the base and half is its index। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, अभी देखो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं, तो क्यूब रूट मैंने आपको क्या बोला, क्यूब रूट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देखो ये इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये है, इसको अपन बोलेंगे nth रूट ऑफ a, दिस इज नोन एज nth रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है a रेज टू 1/n, ठीक है। जैसे अगर आपका स्क्वायर रूट है तो अपन क्या लिखेंगे इसको, a रेज टू हाफ, ठीक है। अगर आपका क्यूब रूट है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a रेज टू 1/3। अगर आपका फोर्थ रूट है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a रेज टू 1/4, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ a, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट ऑफ a, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। व्हाट विल बी कॉल दिस, दिस विल बी a रेज टू 1/5, सो दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ a। आर वी गेटिंग दिस पीपल? अगर यहाँ पे हमारा 6a है, सो वी विल कॉल दिस एज a रेज टू 1/6, सो दैट विल बी सिक्स्थ रूट ऑफ a, ठीक है। अगर समझ लो 7 है तो क्या लिखेंगे भाई साहब, a 1/7, सो दैट विल बी 7th रूट ऑफ a। आर वी गेटिंग दिस? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो अगर आपको क्यूब रूट ऑफ a पूछा है, 8 सॉरी, इसको पहले लिख लो यार, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन होता है, इसको लिख लो चाहे तो थोड़ा सा। Okay, so let's say what is the cube root of 8? So 16 can also be written as, ये हो गया आपका 2 2 2, so 2 क्यूब लिख सकते हैं। Now cube root of 8, तो आप देखो यहाँ पे cube root of 8 कितना हो जाएगा, this means cube root of 8, so it means how much, cube root of 2 का cube, so that will be how much, 2 cube into, जैसे मैंने आपको बोला 1/3, so that will be 2 raised to 1, that will be 2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। सो 8 इज क्यूब रूट ऑफ 2, 4 इज क्यूब रूट ऑफ, कितना हो जाएगा बोलो, 4 इज क्यूब रूट ऑफ, नहीं 4 किसका क्यूब रूट है? ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको तुम क्यूब करोगे तो उसका क्यूब रूट आएगा, हाँ 16 नहीं, देखो ना 4 इंटू 4 अगर करोगे तो कितना आएगा बोलो, 64, ठीक है। इस 64 का अगर तुम क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 क्यूब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 4 क्यूब इंटू 1/3, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 रेज टू 1, सो दिस विल बी 4, ठीक है।
सो 4 इज द क्यूब रूट ऑफ व्हाट 64, ठीक है। 8 इज क्यूब ऑफ 2, 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64। समझ में आ रहा है? 64 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो यू विल गेट 4। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। 4 इज क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, which can also be written as 8 raised to 1 by 2 is equal to 2, 8 raised to 1 by 3, सॉरी ये 8 raised to 1 by 3 होगा, is equal to क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। 8 raised to 1 by 3, ठीक है। here आपका 8 is base and 1 by 3 is what the index, यहाँ पे 1 by 3 होगा, ठीक है। 8 is the base and 1 by 3 is the index, तो क्यूब रूट आपका क्या हो जाएगा 1 by 3, ठीक है। कोई भी होगा, देखो nth रूट ऑफ एनी नंबर is equal to a raised to 1 by n, nth root of any number is equal to a raised to 1 by n. Are we absolutely clear on this one? Okay, चलिए चलते हैं भाई साहब। a raised to, जो पहला लॉ है इसको लिख लीजिए, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। अभी यहाँ पे समझिए a क्या है आपका, a is basically the base, ठीक है, a is the base और ये आपका क्या है इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है और दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, so a raised to m into a raised to n that will be equal to a raised to m plus n, ठीक है, a raised to m plus n। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है 5 raised to 3 into 5 raised to 4 that will be equal to 5 raised to 3 plus 4 that is 5 raised to 7। समझ में आता है ये, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे है 2 raised to 6 and 2 raised to -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे आप, देखो 2 raised to 6 plus -1, प्लस और माइनस में जीतता कौन है, माइनस, ठीक है। सो दिस विल बी 2 raised to 6 minus 1 दैट विल बी 2 raised to 5। आर वी गेटिंग दिस? क्लियर है पीपल? ओके, सो आपका a raised to m डिवाइडेड बाई a raised to n, ये कितना हो जाएगा, a raised to m minus n, ठीक है, a raised to m minus n, ठीक है। तो a raised to m into a raised to n कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, a raised to m plus n, a raised to m डिवाइडेड बाई a raised to n मतलब क्या होगा, देखो a raised to m अपॉन a raised to n, ये कितना हो जाएगा, a raised to m minus n। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 raised to 3 डिवाइडेड बाई 4 raised to 2। शर्त ये है कि आपका दोनों बेसिस सेम होने चाहिए, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो व्हाट विल दिस बी, 4 raised to 3 minus 2, सो दैट विल बी 4 raised to 1 दैट इज 4, ठीक है, क्लियर है। जैसे आपका समझ लो 7 raised to 8 है डिवाइडेड बाई 7 raised to 4 है, so that will be how much, 7 raised to 8 upon 7 raised to 4, so that will be 7 raised to 8 minus 4, so that will be 7 raised to 4। Are we getting this people? ठीक है, okay। so a raised to m minus, अभी a raised to m into n मतलब समझो जैसे आपने अभी किया ना, देखो मैंने क्या किया था, आपका क्यूब रूट ऑफ 8 किया था मैंने, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, that will be 8 raised to 1 by 3। अभी इस 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2 raised to 3 1 by 3, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 raised to, देखो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, देखो तो a raised to m raised to n will be equal to a raised to m into n, ठीक है। तो यहाँ पे 2 raised to 3 था into 1 by 3, so that will give you how much, 2 raised to 1 that is equal to 2। Are we clear? So a raised to m raised to n, a raised to m raised to n will be equal to a raised to m into n, ठीक है। a into b raised to m है अगर, ठीक है, तो अगर समझ लो यहाँ पे 2 और 3, अभी देखो बेसिस अलग अलग हैं लेकिन दोनों बेसिस का पावर सेम है, तो लेट्स से ये 3 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज 2 raised to 3 into 3 raised to 3। ये पावर दोनों पे एप्लीकेबल होगा, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। a into b raised to m, ठीक है, a into b raised to m will be equal to a raised to m into b raised to m। Are we getting this people? ठीक है, ओके, a raised to m into b raised to m, a डिवाइडेड बाई b raised to m, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया ना, देखो a डिवाइडेड बाई b raised to m मतलब क्या हो जाएगा, a बाई b raised to m, so that will be a raised to m upon b raised to m। समझ में आता है ये, ठीक है, so that will be a raised to m divided by b raised to m। ओके, a माइनस m, देखो a अगर माइनस m होगा तो इसका मतलब होगा 1 by a raised to m, ठीक है। अगर समझ लो 3 raised to -1 है तो ये होगा 1 by 3, 4 raised to लेट्स से -3 है तो इसका मतलब होगा 1 by 4 raised to 3, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है।
जैसे 1/3 रेज टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का क्या हो गया यहाँ पे देखो प्लस, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। 1/3 रेज टू 1 मतलब क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 4 माइनस 3 का क्या हो गया देखो 4 रेज टू 3 हो गया, तो माइनस का हो जाएगा प्लस। a रेज टू माइनस m विल बी इक्वल टू 1/a रेज टू प्लस m, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी 1/a रेज टू m। a रेज टू 0 एनीथिंग, कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव रहने दो, फ्रैक्शन रहने दो, अगर रेज टू 0 है तो दैट विल बी 1, ठीक है। एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 विल ऑलवेज गिव यू 1। सो दीज आर फंडामेंटल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही चीज आपके आगे चलकर काम आएगी, ठीक है। सारे सवाल जो होंगे वो इसी पे बनेंगे लगभग। हो गया, विल गो इट, ओके। क्यूब एंड क्यूब रूट, सम बेस लॉस, तो प्रोडक्ट लॉ हो गया ये, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ आपका क्या हो जाएगा देखो a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, ठीक है। ओके, फिर ये आपका बेस लॉ हो गया, ये आपका प्रोडक्ट लॉ हो गया, ठीक है। जैसे 3 रेज टू 7 इंटू 3 रेज टू 4, ये कितना हो जाएगा बोलो 3 रेज टू 7 प्लस 4 दैट इज 11, ठीक है। 3 रेज टू 7 इंटू 3 रेज टू 4, ये कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी 3 रेज टू 7 प्लस 4 दैट विल बी 3 रेज टू 11। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 3 रेज टू 7 प्लस 4 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 3 रेज टू 11। 2 रेज टू 6 इंटू 2 रेज टू 2 दैट विल बी हाउ मच 2 रेज टू 6 प्लस 2 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 2 रेज टू 8। कोशेंट लॉ क्या हो जाएगा, ठीक है, a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, a रेज टू m माइनस n। तो यहाँ पे हो गया जैसे 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 a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, ठीक है। 3 रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 4, सो 3 रेज टू 7 है डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 4, सो दैट विल बी 3 रेज टू 7 माइनस 4 दैट विल बी 3 रेज टू 3, ठीक है। दैट विल बी 3 रेज टू 3, ओके। सो दैट विल बी 3 रेज टू 3, a रेज टू 3 a रेज टू 5 कितना हो जाएगा बोलो a रेज टू 3 अपॉन a रेज टू 5 दैट विल बी a रेज टू 3 माइनस 5, ठीक है, क्लियर है। एंड दैट विल बी हाउ मच a रेज टू माइनस 2। अभी इसको क्या कैसे लिखेंगे a रेज टू माइनस m कितना होता है बच्चा बाड़ी 1/a रेज टू प्लस m, सो दिस विल बी रिटन एज 1/a रेज टू 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/a रेज टू 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/a रेज टू 2। इवैल्यूएट 3 रेज टू माइनस 2 कितना होगा बोलो, अरे अभी तो पढ़ा a रेज टू माइनस m कितना होता है 1/a रेज टू m, तो 3 रेज टू माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी 1/3 रेज टू 2, ठीक है। और 1/3 रेज टू 2 मतलब कितना हो गया 1/9, 3 स्क्वायर मतलब 9, क्या ये क्लियर है, ओके। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 रेज टू माइनस 2 a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m, तो 3 रेज टू माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/3 रेज टू 2, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 1/9। माइनस 4 रेज टू माइनस 2, ठीक है। इसका बताइए क्या हो जाएगा -4 रेज टू माइनस 2 विल बी हाउ मच 1/-4 रेज टू 2। आर वी गेटिंग दिस भाई, ये सेम रहेगा, ये ऊपर वाला जो इंडेक्स है वो माइनस से प्लस हो जाएगा, बेस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ओनली द इंडेक्स वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, अंडरस्टैंड दिस पीपल, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ये -n से m हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे -4 रेज टू माइनस 2 है, दैट विल बी 1/-4 रेज टू 2, सो -4 रेज टू 2 मतलब क्या हो जाएगा बोलो -4 इंटू -4 दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच 16, 1/16, ठीक है। सो बोलो नहीं, माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, देखो -4 स्क्वायर मतलब क्या होता है -4 इंटू -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 कि सर किया ना हमने, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया ना, मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहे हो, नहीं कैसे डायरेक्ट कैंसिल करोगे, आपको पहले इसमें लाना पड़ेगा ना, -4 का स्क्वायर लिखोगे, -4 का अगर आप स्क्वायर लिख रहे हो सो दैट विल बी -4 इंटू -4, ठीक है। अब आप कैंसिल करोगे भाई साहब 16, दिस इज हाउ यू विल डू इट, ठीक है। सो 1/16 क्लियर है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a रेज टू m, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम, -4 का स्क्वायर, सो दैट विल बी -4 इंटू -4, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। सो ये हो जाएगा कितना आपका बोलो 1/16, ठीक है। दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट्स कैंसल्ड, 4 and 4 गिव्स यू 16, क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए किसको कीजिए जरा,
कोशिश तो कीजिए। ओके यहां पे कितना है देखो, वन बाई टू -5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो, दिस विल बी 1/1/2 है कि नहीं। कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, दैट्स व्हाट वी आर अप्लाइंग, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके अभी यहाँ पे देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, सो दैट विल बी हाउ मच, 1 से क्या मल्टीप्लाई करें, 2 से, 2⁵, मतलब कितना हो गया, 1/1 बाई कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 16, 16 2 32, 32 2 64, तो ये 64 ऊपर चला गया, दैट विल बी बेसिकली 64, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 64, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, सो दैट विल बी हाउ मच, 1/, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 32 कैसे आएगा, हाँ 32 आएगा ना, 2 2 4, 4 2 16, 2 2 4, 4 2 8, आई एम सो सॉरी, 8 2 16, 16 2 32, यस, तो 1/1/32, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/32, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 32/1। डिवीजन को जब आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हो तो इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करते हो, उसके रेसिप्रोकल में, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1 इंटू 32/1, सो दैट विल बी 32, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, आर योर बेसिस इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बोलो, a⁻m इंटू a⁻n, अगर हमारे बेसिस सेम है सो इट विल गिव मी a⁻m प्लस n, तो -4⁵ है डिवाइडेड बाई -4�8, अच्छा सॉरी यहाँ पे डिवीजन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n अगर होगा तो a⁻m माइनस n, -4⁵ डिवाइडेड बाई -4�8, सो यहाँ पे हो गया -4⁵ माइनस 8, तो ये हो गया -4⁻3, ठीक है, -4⁻3। अभी a⁻m कितना होता है, 1/a⁻m होता है, a⁻m इज 1/a⁻m, तो -4⁻3 कितना होगा, 1/-4⁻3, ठीक है, सो दैट विल बी 1/-4 इंटू -4 इंटू -4, सो दैट विल बी हाउ मच, ये दोनों कट गए, 4 4 16, 16 4 64, -1/64, क्या ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, 4⁵ डिवाइडेड बाई 4⁻⁻8, तो a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n कितना होगा, a⁻m माइनस n, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 8, 5 - 8 गिव्स यू हाउ मच, -3। नाउ इसको देखो ध्यान से, ठीक है, a⁻m वी नो इज 1/a⁻m, सो -4⁻3 विल बी इक्वल टू 1/-4⁻3, -m का क्या बन रहा है यहाँ पे, प्लस m, a तो वही रहेगा, ठीक है, सो -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस गेट्स कैंसल्ड, 4 4 16, 16 4 64, सो दैट विल बी हाउ मच, -1/64, आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके, so a⁻m divided by a⁻n, that will be how much, -3. now we know that a⁻m is 1/a⁻m, so -4, तो ये हो गया आपका -4 ठीक है, यहाँ पे आंसर फिनिश कर दिया है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे -1/64 लिखा है, इट्स मीन्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, 1/2 क्यूब रेज टू स्क्वायर, ठीक है, 1/2 क्यूब, आपने देखा a/b अगर है रेज टू m होता है, तो ये क्या होता है, a⁻m अपॉन b⁻m, है ना, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है देखो, 1/2 क्यूब रेज टू 2a, तो दिस विल बी 1 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1, सो दैट विल बी 1, और 2 क्यूब का स्क्वायर मतलब 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, सो दैट विल बी हाउ मच, 1/2⁶, 2⁶ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, so that's going to be how much, 1/64, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो 1/, तो आपका देखो a/b⁻m कितना होता है, a⁻m अपॉन b/m होगा, ठीक है, b⁻m, सो यहाँ पे 1 स्क्वायर बाई 2 क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, 1/2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं, देखो a⁻b
a रेस टू m रेस टू n, ये कितना होता है a रेस टू m इंटू n, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2, दैट इज 1/2 रेस टू 6, सो 1/2 रेस टू 6 वुड बी द आंसर, और 1/64, ठीक है। ओके, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। चलिए इसको जरा करना है फटाफट फटाफट क्विक। देखो क्या करना है यहाँ पे, -3 रेस टू 4 है इंटू 5/3 रेस टू 4 है। अभी आपने देखा कि अगर आपका a इंटू बी रेस टू m होता है तो क्या लिखते हो आप, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m, ये लिखते हो ना। a इंटू बी रेस टू m अगर होता है, a इंटू बी रेस टू m विल बी a रेस टू m इंटू बी रेस टू m, तो -3 रेस टू 4 and 5/3, so this will be how much, -3 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू -4 लिख सकते हैं या चलो लिख देते हैं 1/, हाँ डिवाइड होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट दे रहा था आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें, सो दिस विल बी 3 रेस टू 4, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो -3 रेस टू 4, ये क्या हो जाएगा बोलो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये सारे माइनसेस कैंसिल हो जाएंगे। इसको अपन क्या लिखते हैं, नहीं एक्टिवन करने की भी जरूरत नहीं, 3 रेस टू 4 लिख सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज -3 रेस टू 4 can be written as 3 raised to 4 because ultimately all negatives are getting cancelled. So in place of this, can you write 3 raised to 4? Can you? ठीक है, into 5 raised to 4 upon 3 raised to 4. Can you get this cancelled? So what is your answer? 5 raised to 4. Simple. ठीक है, clear है? This would be basically your answer. तो यहाँ पे हो गया आपका -3 raised to 4, 5/3 raised to 4. ठीक है, a raised to m into b raised to m, that will be ab raised to m. सो दिस विल बी -3, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे -1 से काट दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे किया क्या है, देखो a रेस टू m है इंटू b रेस टू m, दिस कैन बी रिटन एज a इंटू b रेस टू m। सो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो यहाँ था -3 रेस टू 4 इंटू 5/3 रेस टू 4, सो दैट विल बी -3 इंटू 5/3 रेस्ड टू 4, ये हो गया आपका -1, ठीक है। तो ये हो गया कितना बोलो, -5 रेस्ड टू 4। अभी -5 रेस्ड टू 4 लिया हम, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे -1 है इंटू 5 रेस्ड टू 4। नाउ वी नो दैट a इंटू बी रेस्ड टू m विल बी a रेस्ड टू m इंटू b रेस्ड टू m, सो दैट विल बी -1 रेस्ड टू 4 इंटू 5 रेस्ड टू 4, सो -1 रेस्ड टू 4 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, सो दैट विल बी 1 इंटू 5 रेस्ड टू 4, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 5 रेस टू 4, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका -1 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4, दैट इज 1 इंटू 5 रेस टू 4, सो आपका आंसर कितना आ गया, 5 रेस टू 4, ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा फटाफट, एकदम इजी सवाल, फटाक से। डन बच्चा बड़ी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहला तो है आपका a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n, ये कितना होता है a रेस टू m माइनस n, राइट। सो हियर यू हैव 3 रेस टू -7 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू -10। पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद 3 इंटू -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दें, -7 यहाँ पे माइनस इसका और ये -10, समझ में आ रहा है, m माइनस n है, m आपका हो गया -7 -10, ठीक है, इंटू 3 रेस टू -5, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 रेस टू -7 प्लस 10 इंटू 3 रेस टू -5, सो दिस विल बी 10 - 7 दैट इज 3 इंटू 3 रेस टू -5। अभी हम आते हैं किसमें, a रेस टू m इंटू a रेस टू n में,
so that will be a raised to m plus n, so that will be 3 raised to 3 minus 5, है कि नहीं, प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन प्लस और माइनस में माइनस जीतेगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 5, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 रेज टू माइनस 5, तो दिस विल बी 3 रेज टू माइनस 2, अगेन a रेज टू माइनस m की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई a रेज टू m, सो 3 रेज टू माइनस 2 विल बी 1 बाई 3 रेज टू 2, दैट विल बी 1 बाई 9, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, सो 3 रेज टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू माइनस 10, सो हम पहला कौन सा लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच में वी आर बेसिकली पुटिंग दिस a raised to m divided by a raised to n, that will be a raised to m minus n, so minus 7 minus minus 10 into 3 raised to minus 5, that will be minus 7 plus 10 into 3 raised to minus 5, तो ये हो गया 3 raised to minus 5, ठीक है, a raised to m into a raised to n, that will be a raised to m plus n, so this will be 3 minus 5, तो ये हो गया आपका minus 2, now a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m, so ये हो गया आपका 3 raised to minus, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 raised to minus 2, 3 raised to minus 2 will be 1 by 3 raised to 2, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, फॉर्मूला कॉपी करना है क्योंकि आपको रीजन बताना है ना किस लिए आपने ऐसा किया, ठीक है, ये बताइए कैसे करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो a रेज टू m इंटू b रेज टू m, इसका कितना हो जाएगा बोलो, a इंटू b रेज टू m, सो हेयर यू हैव 2 रेज टू माइनस 3 इंटू माइनस 7 रेज टू माइनस 3, दोनों का देखो m पोर्शन सेम है, दोनों का m पोर्शन सेम है, सो व्हाट कैन बी राइट, 2 इंटू माइनस 7 रेज टू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 7 रेज टू माइनस 3, सो दैट विल बी माइनस 14 रेज टू माइनस 3, नाउ a रेज टू माइनस m कितना होता है बच्चा बाटी, 1 बाई a रेज टू m, तो माइनस 14 रेज टू माइनस 3 विल बी 1 बाई माइनस 14 रेज टू 3, आर बी गेटिंग दिस, कौन सा, नहीं नहीं नहीं, देखो कंफ्यूज हो रहे हो, बेसिक फॉर्मूले पे आओ, a रेज टू m b रेज टू m, दोनों में तुम्हारा यहाँ पे क्या है, बेसिस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, सो इफ बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर द सेम देन यू विल डू a इंटू बी रेज टू m, ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 2 और 7 बेसिस आपके अलग अलग हैं, indices are the same, so 2 raised to minus 3 into minus 7 raised to minus 3, so 2 into 7 raised to minus 3 by this 2 into 7 raised to minus 3, 2 into 7 कितना हो गया, minus 14 raised to minus 3, now you come to this one, क्योंकि आपका अभी इंडेक्स क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको कैसे करेंगे, a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m, तो minus 14 raised to minus 3 will be 1 by minus 14 raised to 3, so that is going to be how much, 1 by minus 14 into minus 14 into minus 14, ये कैंसिल हो गया, आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, देखो 14 इंटू 14 इंटू 14, तो एक माइनस बचा रहेगा 1 बाई 14 क्यूब माइनस 14 क्यूब, ठीक है, 1 बाई माइनस 14 क्यूब, सो यहाँ पे देखो 2 इंटू हमने क्या लिखा, देखो a रेज टू m और b रेज टू m, अगर दोनों का पावर सेम है तो a b रेज टू m लिख सकते हैं, a इंटू b रेज टू m लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू माइनस 7 रेज टू माइनस 3, so that will be minus 14 raised to minus 3, ठीक है, so this will be 1 by minus 14 raised to 3, ठीक है, क्लियर है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक पीपल, क्विकेस्ट, डन, देखो 3 रेज टू 0 कितना हो जाएगा, 1, 4 रेज टू माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 बाई 4, 1 बाई 4 रेज टू 1 मतलब 4, ठीक है, इसको पहले ऐड करना है, देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 एंड a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a रेज टू m, तो यहाँ पे 3 रेज टू 0 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, एंड यहाँ पे 4 रेज टू माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई 4 रेज टू 1, दैट इज 1 बाई 4, ठीक है,
इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच 4। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करते हैं बच्चा पार्टी 4 हो गया ये, एंड दिस विल बी 4 प्लस 1 इंटू 4, सो दैट विल बी हाउ मच 5/4 इंटू 4, ठीक है। सो दिस विल बी 5, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, a raised to 0 1, ये हो गया 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 इंटू 4 5/4, तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 5। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। 2 raised to -1 4 raised to -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to -2, 2 raised to -1 कितना हो जाएगा, देखो a raised to -n कितना होता है 1/a raised to m, सो 2 raised to -1, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो दोनों के पावर सेम है, अगर हम ऐसा करते हैं देखो a raised to -m, और लेट्स से अगर हमने देखो अगर हमने ऐसा किया a raised to m into b raised to m, we can write this as a into b raised to m, can we write this people, है ना, -1 इसका भी पावर है, -1 इसका भी पावर है, so we can write this as 2 into 4 raised to -1 divided by 2 raised to -2 लिख सकते हैं, बोलो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 into 2 स्क्वायर रेज टू -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2 ऐसे लिख सकते हैं। अगेन देखो अभी आपने बेसिस को इक्वल कर दिया, ठीक है, बेसिस को इक्वल कर दिया, तो a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये कितना होता है a रेज टू m प्लस n, तो यहाँ पे कितना है 2 इंटू 2 रेज टू 2, सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, इसका पावर कितना है 1 प्लस 2, सो दैट विल बी हाउ मच 2 रेज टू 3, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 2 रेज टू 3 एंड दिस इज -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2। अभी इसको कंसिडर करो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a रेज टू m रेज टू n, ये कितना हो जाता है a रेज टू m इंटू n, सो यहाँ क्या लगाओगे बोलो 2 रेज टू 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2, सो दिस विल बी 2 रेज टू -3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2। अगेन योर बेसिस आर द सेम, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n is equal to a raised to m minus n, so this will be 2 raised to -3 minus 2, so that will be 2 raised to -3 plus 2, so that will be 2 raised to -1। a raised to minus m is equal to कितना हो जाएगा 1 by a raised to m, so 2 raised to -1 1 by 2 raised to 1, that will be 1 by 2। are we getting this people? so this will be 1 by 2। clear है, clear है, clear है people? हम सो ये हो गया आपका 2 रेज टू -3 -2, सो दिस विल बी -1, ठीक है, दिस विल बी -1, सो 1/2 1/2 वुड बी द आंसर। क्लियर पीपल? हम चलिए इसको कीजिए जरा देखो यहां पे क्या है, a रेज टू -m कितना होता है 1 बाई a रेज टू m। एक और चीज नोट कर लो, अगर a बाई b है रेज टू -m होगा तो इसका मतलब क्या होगा 1 बाई a बाई b रेज टू प्लस m, इसका मतलब हो जाएगा b बाई a रेज टू m, इसका मतलब हो जाएगा b बाई m a बाई m, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका a बाई b है रेज्ड टू -m है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो b बाई a रेज टू m, इसको पहले लिख लीजिए a बाई b, अगर आपका -m है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, तो आप इसको लिख सकते हो b बाई a रेज टू m, ये फॉर्मूला है, ठीक है। a बाई b रेज टू m विल बी इक्वल टू b बाई a रेज टू m माइनस m, आई एम सॉरी, a बाई b रेज टू -m विल बी इक्वल टू b बाई a रेज टू m, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है देखो 1/2 रेज टू -2 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2/1 रेज टू -2, सो दैट विल बी 2 रेज टू -2। क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस ये कैसे लिखा हमने, a बाई b रेज टू -m इज इक्वल टू b बाई a रेज टू प्लस m, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे प्लस m होगा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ,
ठीक है, तो प्लस m मतलब आपका 2 हो गया, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, a बाई बी रेज टू माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका है 1/3 है रेज्ड टू माइनस 2, सो दैट विल बी 3/1 रेज्ड टू 2। आर वी गेटिंग दिस? भाई वही सेम आपने फंडा अपनाया क्या, a बाई बी रेज्ड टू माइनस m इज इक्वल टू b बाई a रेज्ड टू m। So 1/3 raised to minus 2 will be equal to 3/1 raised to 2. So that will be how much? 3 square. That is going to be how much? 9. Clear on this one people? बहुत बढ़िया। हाँ इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं 1/2 plus 1/3 और एक्सपोनेंट से मतलब -1 -2 एक को छोड़ देते बाद समझा नहीं? 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 ये दोनों को एक साथ ले सकते हैं एक्सपोनेंट एक साथ तुम कब ले सकते हो? तुम्हारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं, चलो फॉर्मूलेज को देखते हैं, ठीक है। a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो ये कितना हो जाएगा a रेज टू m प्लस n, ठीक है, क्लियर है। a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, ये कितना हो जाएगा a रेज टू m माइनस n। a रेज टू m और n रहा तो ये कितना हो जाएगा a रेज टू m इंटू n, ठीक है। a रेज टू 0 की वैल्यू हो गई 1, a बाई बी रेज टू m, ये कितना हो जाएगा a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, ठीक है, ओके। a इंटू बी रेज टू m, ये कितना हो जाएगा a रेज टू m इंटू b रेज टू m। तमाम फॉर्मूलेज में तुमको कहीं भी दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस दिख रहा है? देखो इन सारे फॉर्मूलेज में दो टर्म्स के बीच में तुमको प्लस या माइनस नहीं दिख रहा है, तो तुम जो सोच रहे हो वो अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इफ इट वुड हैव बीन अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस, लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि प्लस और माइनस है, और प्लस और माइनस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। देखो इनटू डिवीजन, ये भी आपका इनटू में हो गया, ये तो छोड़ो दोनों है नहीं, यहाँ पे भी देखो डिवीजन मोड में है, यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लिकेशन मोड में है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इसीलिए आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपको अलग अलग करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बीच में प्लस है 1/3 रेज टू माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3/1। हमने देखा a बाई बी रेज टू माइनस m इज b बाई a रेज टू m, so 1/3 रेज टू माइनस 2 3/1 रेज टू 2, that will be 9. Okay, 1/4 raised to minus 2, that will be equal to 4/1 raised to 2, so that will be 4 square, that will be 16. Now if we happen to add this 4 plus 9 plus 16, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 plus 4 13 plus 16, so this will be 6 plus 3 9 और ये हो गया आपका 29. This would be the answer. समझ में आ रहा है आप क्यों नहीं कर सकते हो वैसे? क्योंकि बीच में प्लस है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया 2 रेज टू माइनस 1, ये समझ में आ रहा है। देखो 4 रेज टू माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या लिया, देखो 1/a है ना, a रेज टू माइनस 2 है, तो दिस विल बी, आप उसको ऊपर ले लीजिए। ठीक है, 1/a रेज टू माइनस 2 है, सो दिस विल बी 2 रेज टू माइनस, इस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, मैंने जैसे बताया उसको वैसे ही कीजिए। 2 रेज टू 2 प्लस 3 रेज टू 4, तो आपका 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 29। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए इसको कीजिए 3 रेज टू माइनस 1, तो यहाँ पे देखो a रेज टू माइनस m की वैल्यू क्या होती है 1/a रेज टू m, सो यहाँ पे कितना है 3 रेज टू माइनस 1 है, सो दिस विल बी 1/3 रेज टू 1 दैट इज 3। बीच में अगेन देखो प्लस है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इस सवाल को करोगे तुम? क्यों? 0 है, देखिए करने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग कुछ भी रहने दो, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, सो आप सीधा आंसर लिख दो भाई साहब 1। ठीक है, a रेज टू 0 आपका 1 होता है। अब इसके अंदर कौन सी खिचड़ी पकड़ी है, हमको क्या फायदा, मेहनत करके फायदा क्या है जब आपको मालूम है एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ठीक है, आप यहाँ पे पूरी खिचड़ी पकाओगे, उसको रेज टू 0 करोगे और आंसर आएगा 1, तो सीधा आप आंसर लिख सकते हो रेज टू 0 इज 1। ठीक है, पूरी खिचड़ी पकाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, सो इस हिसाब से भाई साहब दिस विल बी इक्वल टू 1, सिंपल, खत्म। कोई इसमें 1/3 1/4 ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 रेज टू -2 एंड स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला था, देखो अगर a बाई बी है रेज टू माइनस m है, तो ये क्या हो जाएगा b बाई a रेज टू m। तो पहले इसको पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 और ये वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिव दैट इज 2। समझ में आ रहा है ये?
a बाई बी अगर माइनस एम है तो b बाई ए प्लस एन, -2/3 -2 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3/2 रेज टू +2। ठीक है, क्लियर है। अभी ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि a रेज टू m रेज टू n होता है क्या, a रेज टू m इंटू n। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, -3/2 रेज टू 2 इंटू 2, सो दैट विल बी -3/2 रेज टू 4। ठीक है, क्लियर है, दिस वुड बी दी आंसर। अब चाहे तो आप इसको भाई साहब -3/2 इंटू -3/2, ठीक है, इंटू -3/2 इंटू -3/2 अगर करेंगे तो ये सारे तमाम कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 रेज टू 4, और वी कैन राइट दिस एज 3 3 9 9 3 27 27 3 81 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, बोथ द फॉर्मेट्स ऑफ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, 3/2 रेज टू 4 और 81/16। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हो गया आपका -2, ये हो गया आपका 4 -3/2, सो दिस विल बी 81/16। आपका कितना आंसर आ गया, देखो 81/16। ठीक है, ओके ओके, इवैल्यूएट इसको कर लीजिए भाई साहब, क्या हो जाएगा बोलो, 8 रेज टू -1, a रेज टू -m कितना होता है, 1/a रेज टू m, सो 8 रेज टू -1 विल बी 1/8 रेज टू 1, और यहाँ पे कितना है 5 रेज टू 3। ठीक है, तो ये हो गया 1/8 इंटू 5 रेज टू 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 रेज टू -4। ठीक है, एक काम करो भाई साहब, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो 8 रेज टू -1 है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 8 की जगह पे लिखा 2 क्यूब और ऊपर क्या है -1। ठीक है, इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 रेज टू 3 इंटू -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4, सो दैट विल बी 2 रेज टू -3 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4। ठीक है, क्लियर है। अभी ये -3 है, ये -4 है, क्या लिख सकते हैं बोलो इसका, इसको तो अपन कर सकते हैं ना, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ये कितना होता है, a रेज टू m माइनस n, सो दिस विल बी 2 रेज टू -3 माइनस -4, ये माइनस इसका और इसका खुद का माइनस, इंटू 5 रेज टू 3, सो दैट विल बी 2 रेज टू -3 प्लस 4 इंटू 5 रेज टू 3, दैट विल बी 2 रेज टू 4 -3 हो गया 1 इंटू 5 रेज टू 3। ठीक है, 5 रेज टू 3, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो 8 रेज टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 रेज टू 3 रेज टू -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3, तो ये हो गया आपका 2 रेज टू -3 -3, तो ये हो गया आपका 2 रेज टू, तो ये हो गया 2 इंटू 125, 5 क्यूब कर लो भाई साहब, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 125 इंटू 2 इज 250, सो दैट विल बी बेसिकली 250। ठीक है, क्लियर हम, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपलम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/3 रेज टू -1, 1/4 रेज टू -1, और ये क्या है, रेज टू -1 है। ठीक है, तो पहले हम इसको करेंगे, देखो a/b रेज्ड टू -m इज इक्वल टू b/a रेज टू m, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज 3/1 रेज टू 1 माइनस 1/4 रेज टू -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/1 रेज टू 1, तो ये हो गया आपका 4 रेज टू 1, तो 4/1 रेज टू 1, और ये हो गया कितना, रेज टू -1, सो ये हो गया 3 -4 एंड दैट इज रेज टू -1, तो ये हो गया -1 रेज टू -1। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/-1 रेज टू 1, सो दैट विल बी 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू -1, तो यहाँ पे कर लो, देखो a रेज टू, तो 3/1 रेज टू 1 हो गया, 4/1 दैट इज रेज टू -1, 3 - 4 दैट इज -1 रेज टू -1, तो आपका कितना हो गया, 1/-1 रेज टू 1 दैट विल बी -1। ठीक है, ओके। 5/8 इसको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पिछली बार अभी बताया, देखो 5/8 को क्या करना है, 8/5, देखो यहाँ पे हमारा a/b रेज्ड टू -m को अपन क्या लिख सकते हैं, b/a रेज टू +m, तो 5/8 इंटू -7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8/5 रेज टू +7। अब कर लो भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज 8/5 रेज टू +7 इंटू 8/5
raised to minus 4. What is this format? A raised to m into a raised to n. So that will be a raised to m plus n. So this is going to be 8 by 5 raised to 7 minus 4. So that will be 8 by 5 raised to 3. ठीक है, 8 by 5 raised to 3. Are we clear to this one? So the property a raised to m into a raised to n, ये बस दो numbers पे applicable है. कितने भी नंबर्स को, लेकिन ये बेस आपका सेम होना चाहिए. इट इज़ नॉट जस्ट 2 नंबर्स, इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी फॉर्म ऑफ. जैसे अगर समझ लो क्या हो गया, ए रेज टू एल इंटू ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन एंड लेट्स से ए रेज टू ओ है. आप अगर देखोगे सब में बेस सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए रेज टू एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 नंबर्स पर रिस्ट्रिक्टेड है, इट कैन बी एप्लीकेबल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स. लेकिन कंडीशन क्या है, ऑल हैव टू बी हैविंग द सेम बेस. आपका बेस सेम होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 8 by 5 रेज टू, ये मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी 8 by 5 रेज टू 7 माइनस, हो चलिए ये हो गया ना, सॉरी. तो यहाँ पे हो गया, देखो दिस विल बी हाउ मच. ये लंबा मेथड है, मैं आपको शॉर्ट में मैंने बताया है. आपका देखो आंसर वही आएगा. ठीक है, तो आपका कितना आंसर आया, देखो 8 by 5 रेज टू 3 विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 8 क्यूब अपॉन 5 का क्यूब. ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 512 अपॉन 125. ठीक है, ओके ओके ओके. सिंप्लीफाई, अभी देखो हमने ये सवाल किया. ठीक है, इसको फिर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर. व्हाट कैन बी राइट दिस एज t रेज टू माइनस 4. This can be done as 5 raised to minus 3 and this can be done as 2 into 5 into t raised to minus 8. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5 raised to 2 into t raised to minus 4. यहाँ पे देखो a raised to m into a raised to n. तो अगर हम अप्लाई करते हैं a raised to m into a raised to n, that gives us how much, a raised to m plus n. So that will be 5 raised to minus 3 plus 1 into 2. ठीक है, इंटू टी रेज टू माइनस 4. ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 रेज टू 2 इंटू टी रेज टू माइनस 4, 5 रेज टू माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी रेज टू माइनस 8 है ना यहाँ पे, टी रेज टू माइनस 8. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी हाउ मच, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, दैट इज हाउ मच, ए रेज टू एम माइनस एन. तो ये हो गया आपका 5 रेज टू 2 माइनस माइनस 2 अपॉन 2 इंटू टी रेज टू माइनस 4 माइनस माइनस 8. समझ में आ रहा है, ये 2 रह गया यहाँ पे, और टी रेज टू माइनस 4 माइनस माइनस 8. ठीक है, क्लियर है. कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 5 रेज टू 4 और यहाँ पे कितना हो गया, 8 माइनस 4 दैट इज 4. ठीक है, अपॉन 2, 5 रेज टू 4, तो 5 रेज टू 4 कितना हो जाएगा, 25, 625 टी रेज टू 4 अपॉन 2. ये आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, ओके ओके ओके. तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपने पहले क्या किया, 5 रेज टू, पूरा एक साथ ही कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एक साथ करने में. तो दिस विल बी 5 रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 4 अपॉन 2. सो 5 रेज टू 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी, 625 टी रेज टू 4 अपॉन 2. ठीक है, ओके. चलिए यहाँ पे आपका देखो 3 रेज टू माइनस 5, 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 125, और यहाँ पे 5 रेज टू माइनस 7 एंड 6 रेज टू माइनस 5. आज यहाँ तक ही रखते हैं. ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल